Welcome back. We had started off this chapter making of a scientist, right? And in the last class, in the last session, we had first understood what is the chapter all about. This is the story of Dr. Ebright, Richard Ebright, who has given the cell theory to the world. And in the last class, we had done that how he was having a difficult childhood, but at the same time an interesting childhood with his along with his mother. उसकी मम्मी के efforts की वजह से he had a very good. Then when he entered the school and वहां पर when he was having the competitions, so the first competition he had lost. The lost competition gave him the challenge. He needs to do something real. और बचपन से ही वो बटरफ्लाइज के साथ खेलता था और इसीलिए he had chosen butterfly as his main element. और उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था that was to see that वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो होते हैं वो मोनाको उसको ये प्रूव करना था कि वाइसरॉयज जो है वो मोनाको कॉपी करते एंड वाई इट वॉज क्यों ऐसा करना चाहते थे वो बिकॉज वाइसरॉयज जो थे उनको बर्ड्स खा लेते थे वेरस मोनाक्स को नहीं खाते थे और इसी वजह से जो ये वाइसरॉयज जो बटरफ्लाइज थे ये कोशिश करते थे टू कॉपी द मोनाक्स नाउ हिज प्रोजेक्ट क्या था मेनली उसका प्रोजेक्ट क्या था whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling, a bird, would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarch it could get. Ebright and later research by other people showed Viceroy probably do copy the monarch. और इस सिर्फ इस proven theory के लिए he had got the first prize in the zoology division and third in the overall county fair. In his second year in the high school, he began the research. अब आगे वो गया. And what was the research all about? It was all about the insect hormone. क्योंकि वही इंसेक्ट हार्मोन की वजह से सेल थियरी आई थी और कैसे किया था उसने वो द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा क्योंकि लोगों का मानना था कि वो जो प्यूपा के ऊपर जो उसके शरीर पर जो मतलब स्पॉट्स होते हैं दे आर ब्यूटी दे आर पार्ट ऑफ ब्यूटी उनको लगता था लोगों को everyone assumed the spots were just ornamental but Dr. Archat did not believe it. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. सबसे पहले तो उनको उस स्पॉट्स को स्टडी करना पड़ा था कि वो स्पॉट्स एक्चुअल में क्या है वो सिर्फ एक स्पॉट है या फिर उनका पीछे कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल कोई काम है एंड व्हाट दे फाउंड इज कि दे सिक्रीट हार्मोन्स और वो हार्मोन्स ग्रोथ के लिए भी जरूरी है इट इज नॉट ऑर्नामेंटल विच इज अ वेरी इट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third prize for zoology and also he got to work during the summer at the entomology laboratory जहां birds के बारे में पढ़ते हैं हम जहां हम insects के बारे में पढ़ते हैं of the Walter Reed Army Institute of Research. It is one of the very leading one in US. As a high school junior अब तक वो 10th में था वहां हमारा 10th 11th 12th नहीं होता दे हैव द हाई स्कूल इसका नाम क्या ऐसे करके
Richard continued his advanced experiment on the pupa. That year, his project won first at the International Science and gave another chance to work in the laboratory. अब next आगे पढ़ रहा था वो. In the senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wing. उसने विंग्स निकाले, उसमें से हार्मोन्स को सिक्रीट किया, कल्चर निकाला. आप लोगों को पता है ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर होता हमारा. एंड showed the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed with that hormone from the gold spot. उनमें वही जो आपके सेल के जो मतलब की इनहेरिटेंस है वो तभी आता है नॉर्मल वाला अगर उनमें वो वाले गोल्ड स्पॉट वाले हार्मोन होंगे तो. एंड दिस इज वेयर यू रिमेंबर व्हाट इज सेल थियरी. व्हाट इज सेल थियरी? एज आई टोल्ड यू दैट डे कि कैंसर का एक सबसे वियर्ड एंड सिंपल डेफिनेशन होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स. जब आपका अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो दैट बिकम्स इनटू कैंसर. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल एंड अब तक वो ग्रेजुएशन में पहुंच गया. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory of US Department of Agriculture. Now he was into the university. The following summer, after his freshman year at Harvard University, world's one of the most prominent university, he went back to the lab of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. Using the lab's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब उसने उन्हीं स्पॉट्स पर ही काम किया. पहला उसने ये फर्स्ट what he had researched and discovered is कि वो जो स्पॉट्स थे they were not ornamental, they were hormone producing. दूसरा उसने ये किया कि वो जो हार्मोन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई डेवलपमेंट. एंड थर्ड उसने ये देखा कि अगर वो हार्मोन्स नहीं फीड होते हैं तो बटरफ्लाई डज नॉट डेवलप विद द सेम काइंड ऑफ स्केल्स. अब वो फर्दर गया और उस हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है यानी कि विच फॉर्मूला उसको उसने पढ़ने की कोशिश की. A year and a half later, during the junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at the X-ray photos of chemical structure of a hormone. और यहीं से मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ क्लास 10. जब वो उस केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ रहा था तो उसने एक चीज को नोट किया एंड दैट वाज द theory of cell life. That is somewhere entering into the world of oncology, cancer. When he saw these photos, Ebright did not shout Eureka or I have got it. मतलब कोई वो he was not very happy. He did not exclaim. लेकिन he believed along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of DNA. DNA is the substance in the nucleus that controls heredity and it determines the form and functions of cell. Thus, DNA is the blueprint for life. तभी आजकल जितने भी आपके मतलब कि कैंसर वगैरह होते हैं उसमें डीएनए की जो थियोरी है उसको बहुत डीपली लेते हैं क्योंकि वो आपके पूरे दैट इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस और उसी से डिराइव किया जाता है. एंड उसी से हमें नॉट ओनली इट इज ऑल अबाउट कैंसर, इट इज ऑल्सो ऑल अबाउट द diseases that passes from one generation to another. आपके साइंस में जो चैप्टर है मेरे ख्याल में अब तक तो हो भी गया होगा. The chapter must have been done till now.
which is a very important one, heredity, evolution wala और heredity wala. So when we say heredity, what is heredity? The things, the quality, the traits that you carry from your parents, from your ancestors. Like you may be looking like your father, you might be looking like your mother, you may be eating like your बुआ. तो वो जो हेरिडिटी से हमारे पास आते हैं, तो हेरिडिटी इज नॉट confined to the traits, but it is also to the diseases. कभी डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर सबसे पहले अगर आपको कोई बीमारी होती ना, तो वो पूछता है आपके घर में किसी को है क्या ये चीज, लाइक अस्थमा, देन आपके बड़े सारे क्रॉनिक्स है, डायबिटीज, दीज आर ऑल क्रॉनिक, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स. और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? टू डीएनए. एंड डीएनए इज ऑल्सो द मेन ब्लूप्रिंट जिससे हम किसी के भी जो आपका पैरेंटल एसोसिएशन है उसको भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. लाइक सम, आप अगर आपने कहानियां सुनी हो, इफ यू आर वाचिंग दोस तो फालतू उसका सीरियल जिसमें दिखाते हैं डीएनए टेस्ट करवाओ. और डीएनए टेस्ट हम किससे करवाते हैं? दैट कैन बी इवन विद दिस सिंगल हेयर, बालों से भी हो जाता है. और उससे आपके जो सेल्स होते हैं, जो बेसिक, जैसे हमारे मोबाइल्स में आपके बेसिक मदरबोर्ड में होते हैं, वैसा बेसिक सेल्स होते हैं, वो हमारे सेम होते हैं. सो उससे हम मैच करके वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्सन इज रिलेटेड और नॉट. आजकल तो जो डीएनए की थियरी है, ये जो सेल थियरी है ना, दिस इज मतलब जो डीएनए की थियरी है, इट इज इवन यूज इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजी. तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, ये एक बार पेपर में आया था कि उसके रूममेट का नाम क्या था. Worked all the night drawing pictures, constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. और उन्होंने पूरी रात जो है पहले तो उस थियोरी को पढ़ा. उन्होंने वो पूरा जो मतलब कि मॉडल वो किया था उसको ड्रॉ किया. एंड देन they could develop that what is actually DNA, how it multiplies, how it is related. और उन्होंने पूरा उसका एक रिसर्च रोड द पेपर, मतलब रिसर्च पेपर. जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, दे हैव टू राइट सच पेपर्स. उसके देयर इज अ वे हाउ टू राइट. सरप्राइजिंगली नो वन हु न्यू हिम. Ebright graduated from Harvard with highest honors. Second is class of 1510. 1510 बच्चों में वो सेकंड आया था. और अभी तक ज्यादा लोग उसको जानते नहीं थे, लेकिन ही हैड बीन द टॉपर. और ऑनर्स आपके होता बेटा, हाईएस्ट ऑनर्स जो है, इट इज रेफर टू अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन अ सब्जेक्ट. Ebright went to on become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Then he began doing experiment to test his theory. और उसके बाद he was a graduate student researcher. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other diseases. And all of this is possible because of Ebright's scientific क्यूरियोसिटी. मतलब एक छोटी सी क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि भाई वो जो छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं वो क्यों है, उस डॉट से हार्मोन, हार्मोन से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से उसकी वो पूरा. एंड हियर ही हैड रिसर्च्ड इट. His high school research into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led to him theory about the cell life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. मतलब ऐसा नहीं कि वो साइंस में डूबा रहता था. आपके यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आता है,
There is a question. He was a champion debater, public speaker, good canoeist. Canoeist होते हैं जो पानी में जो आपके adventurous sports, and all round outdoors person. खूब मस्ती करता था. He is also an expert photographer, particularly in nature and scientific exhibits. मतलब उसकी जो फोटोग्राफी है वो साइंस नेचर को ज्यादा फोकस करती. तो इन अनदर वर्ड ही वॉज नॉट जस्ट कि माइक्रोस्कोप लिया और बस काम कर रहा है. ही वॉज एन ऑलराउंडर. इन हाई स्कूल एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, टॉपर, बिकॉज लर्निंग वॉज सो इजी. स्कूल में जो हम पढ़ते हैं सचमुच में वो सिर्फ हम रटते हैं. He turned a lot of his energy towards the debating and MUNs. आपके schools में भी होता है. Many of the students take part. He also found someone to admire, his SST teacher, Richard A. Weir. An advisor to both clubs. मतलब वो debating club के भी advisor थे और MUN के भी थे. और वो सर जो थे वो उसके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा, he was a great mentor. He opened my minds to new ideas. And वो जो है इसके साथ खूब मेहनत करते थे. Richard would always give that extra effort. मतलब नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था. What pleased me was, here was this person who puts in 3 to 4 hours at night doing debate research beside doing research with butterflies and all other interests. मतलब he got time for every activity. मतलब वो डिबेट के लिए भी उतनी तैयारी करता था जितनी कि MUN के लिए. वो अपने बटरफ्लाईज पर भी उतना ही रिसर्च करता था जितना और किसी हॉबी के लिए. ही वॉज नॉट लाइक कि नॉर्मली कहते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और उनकी शक्ल एकदम बड़ी डरा. ऐसा नहीं था. ही वॉज लाइक एनी अदर किड. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. ये पेपर में आपको जो है एक्सप्लेन करने को आता है, but not in a bad sense. Now, what is the difference between good sense and bad sense? When you want to overshadow others, आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो, तो then competition is wrong. क्यों? क्योंकि you will be using the wrong way to win. Whereas if you are competitive in the true spirit, you have the audacity, आपके पास वो courage है कि सामने वाले को सामना करो, then it is in the right sense. You are not disheartened, you are not overshadowing others. आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहे. Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. सिर्फ प्राइज के लिए नहीं था, but he wanted to do the best he could. और बच्चा ये जो लेसन है ना, fortunately or unfortunately, I always have believed in this. I always tell my students, my kids, that never be disheartened if you are not winning, because you should put your full effort. It should not be that मुझे मतलब कि नहीं, क्योंकि जब आप हार जाते हो ना तो उसके साथ में you also have so many negative feelings. That should not be there. Have the right spirit, do the best. For the right reasons he wants to be the best. And ये आपका then a $1 million question, a very, very important question. What are the ingredients of making of a scientist? अगर आपको साइंटिस्ट बनना तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, और ये पूरा इसका आंसर है. दिस इज द आंसर. फर्स्ट, अ फर्स्ट रेट माइंड. आपका दिमाग एकदम तेज होना चाहिए. क्यूरियोसिटी. आपका जो माइंड है
उसके अंदर क्यूरियोसिटी शुड बी देयर. देन यू शुड हैव द विल पावर टू विन. जीतने के लिए यू शुड हैव द राइट रीजन के लिए, जीतने के लिए विल पावर होना चाहिए. और अगर आपके पास ये तीनों क्वालिटीज हैं, देन you are going to be the winner. A bride has these qualities. From the time the book, The Travels of Monarch X, opened the world of science to him, he has never lost his scientific curiosity. और उसके अंदर ब्रेन भी था, क्यूरियोसिटी भी थी, एंड टू विन फॉर द राइट पर्पस वाला जो आपका फॉर्मूला था वो भी था. ये पेपर का आपका क्वेश्चन. What are the ingredients of becoming a scientist? So that is the chapter, Making of a Scientist. When we read this chapter, I always tell students, as a part of your class 10, why this is there in your exam, is in your book is, first you're reading about a person who really has done something. आज हम इतने सारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंडली, इट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज इन विच इट हैज बीन रिटन. उसको किस तरीके से लिखा गया है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, इट इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी डीप प्रोवोकिंग मैसेज. हम लोग कई बार, हम लोगों में से जो लोग हैं, हम में से हम जो है, वी थिंक दैट वी नीड टू participate in a game, we need to participate in a competition because we have to win it. Yes, winning spirit is very important. कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा, it's okay. No, not at all. Winning spirit is always very important. जब तक आपके अंदर वो winning spirit आएगी नहीं ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके पेपर में 100 में से 110 मार्क्स क्यों ना आते हो, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के आते थे, आपके वैसे 110 भी क्यों ना आते हो, यू कैन नेवर विन द लाइफ. Because marks will not be defining your personality. Your winning spirit will define your personality. There are times जब हमें लगता है कि यार नहीं, I'm not in the rat race. I don't want to. लेकिन अगर आप जीत रहे हो सिर्फ अपने लिए, not in the rat race, you are the winner. Secondly, when we say curiosity, क्यूरियोसिटी इज नॉट कि हमने नेशनल ज्योग्राफी का चैनल लगा दिया और हम कहते हैं मैम हमें तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट. नो. लास्ट ईयर का तो आपको पता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैड अ वेरी स्पेशल बैच. बट उससे पहले जो मेरे पास बैच था 12th का स्पेसिफिकली, वो मेरे पास बहुत सालों से पढ़ रहे थे. तो देयर यूज्ड टू बी सम स्टूडेंट्स जो मुझे कहते थे कि मैम हमें साइंस लेना. एंड आई यूज्ड टू टेल दैट बॉय, बड़ा ही फनी सा बच्चा था वो, कि डोंट थिंक दैट साइंस इज लाइक अ कप ऑफ केक. नो मैम, मुझे बहुत इंटरेस्ट है. तो आई आस्क्ड क्या इंटरेस्ट है. मैम मैं नेशनल ज्योग्राफी देखता हूँ. भाई आप नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो मैं भी नेशनल ज्योग्राफी देखती हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं साइंस साइंस मेरे को मुझे अच्छा लगता है. हाथी और घोड़े या मतलब कि नेचर को देखने से आपका साइंस इंटरेस्ट नहीं है. साइंस इज व्हेन यू वांट टू नो व्हाई थिंग्स हैपन. Science is not learning about heredity, evolution, or the chemical formulas or the equation. It is not about learning about velocity or what is Archimedes' principles. It is all about why this thing happens. Are you able to continue it? तब आपको जो है साइंस इंटरेस्ट बोल सकते. तो टू बिकम अ गुड साइंटिस्ट, ये सारी मैं इतनी सारी जो बकवास कर रही हूँ ना, दिस इज बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. कि साइंटिस्ट बनने के लिए एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आपको जो है एड्रेस करना है, स्पीच देना है, आपको काउंसिल करना है, आपको एक मतलब कि पैराग्राफ लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है. दिस क्वेश्चन हैज कम इन दीज वेज. So science is where you have the curiosity.
where you have the learning willingness forever. कभी किसी डॉक्टर्स की जिंदगी देखना, देर आर सो मेनी मीम्स की 14 साल बाद तो राम भगवान का एग्जाइल खत्म हो गया था, इनका नहीं खत्म होता. They have to. Science is that curiosity. And that is what Dr. Richard Ebright had. और इसीलिए शायद आज हम उनको इतनी भी मतलब कि रेवर है, उनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो टुडे इफ वी टॉक अबाउट द ऑन्कोलॉजी, हेरिडिटरी डिजीजेस, सो मेनी उनके कॉजेस, उनके लिए, क्योंकि अगर कॉज होगा तो हमारे पास उसका इलाज भी होगा, अगर कॉज नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा. सबको सर में दर्द होता है, होता नहीं होता है? यस और नो? सर में दर्द सबके होता है? नहीं होता कभी? एनी टाइम हैव यू ऑल फेस्ड हेडेक? ओके, यस, वन होता है ना? आर ऑल द हेडेक सेम? कैन वी ट्रीट ऑल द हेडेक्स विद द सेम मेडिसिन? नो. बेसिक्स हम ट्रीट कर सकते हैं, लाइक all the type of headaches can be given the normal tablet क्रोसिन, बट हेडेक के कम से कम 12 प्रकार होते हैं. You have a migraine, you may be having a stress, you may be having BP, you may be having, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं. And when doctors have to go through this, they try to find and then they give you the medicine. So that is what scientific curiosity is all about, and the chapter, the making of a scientist. Last but not the least, before I finish the chapter along with NCERT and proceed to the assignment section, let me tell you, इस चैप्टर से बहुत सेकंड कॉमन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन हिज शेपिंग ऑफ द करियर. Second question is about the winning spirit, how he had, क्या क्या उसने जो है जीता था, what were the, और इसी में लास्ट ईयर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी कि मैम उसने क्या क्या किया था. तो पहला उसने किया था फ्रॉक थियरी, फ्रॉक के सेल्स को दिखाया था. ठीक है, पहला. what was the first one? It was about the frog's tissue. सेकेंड उसने जो किया था वो था बटरफ्लाइज के ऊपर, और बटरफ्लाइज पर उसने पहला जो किया था वो था मोनार्क और वाइसरॉय की जो कंपैरिजन है वो उसने किया था. फिर उसने जो नेक्स्ट किया था दैट वाज अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स. एंड व्हाट वर दोज गोल्ड स्पॉट्स? वो पहला पड़ाव था, दैट वर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग स्पॉट्स, which is important for the development of the pupa. एंड इसी का फर्दर उसने पढ़ा था कि अगर हम उस गोल्ड स्पॉट के विंग्स को अलग से कल्चर लेकर चलते हैं, अगर वो गोल्ड स्पॉट वाला हार्मोन बटरफ्लाई को नहीं दिया जाता तो इट डजंट डेवलप लाइक अदर बटरफ्लाईज. ये आपके जो है थियरीज थे जो उसने क्रोनोलॉजिकली किया था. बाद में फ्रॉम दिस विंग्स, मतलब जो आपके स्पॉट्स, he had developed the cell theory further आपका. तो पहला फ्रॉक टिश्यू, देन आपका बटरफ्लाईज का डिफरेंस, गोल्ड स्पॉट हार्मोन्स, देन उसके विंग कल्चर, और उसके बाद आपका सेल थियरी. सो दिस इज द क्रोनोलॉजी. ये लास्ट ईयर बच्चों में मैम वो कितने सारी चीजें थी, आपको इतना ही लर्न करना, राइट? तो व्हाट, मतलब दैट कैन बी अ क्वेश्चन. देन what are the ingredients of making of a scientist? First rate mind, curiosity, and that is willing power. Sorry, will to win.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, और वो है जो ग्रिफिन था उसके कैरेक्टर एंड आपके डॉक्टर रिचर्ड के कैरेक्टर को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना. नाउ देयर माइट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और हो सकता है both Griffin and Richards were scientists. But Griffin met his fatal destiny and Richard is respected. क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने जो अपनी थियरी थी, ये पेपर में बहुत आया है, स्पेसिफिकली इन द स्कूल्स इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. लास्ट ईयर ऑल्सो व्हेन आई टॉट दिस केम इन द एग्जाम. Griffin used, he was an excellent person. He had discovered the theory of transparency. एंड ऐसे जो ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी जो मतलब कि ये चीजें जो है वी कैन यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, हम लोग यूज कर सकते हैं. बट रादर देन यूजिंग इट फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस, ग्रिफिन यूज इट फॉर डिस्ट्रक्शन. एंड रिचर्ड जो है उन्होंने यूज किया इट फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस. उन्होंने अपनी जो सेल थियरी थी उसको यूज किया टू गिव अ न्यू थियरी टू द वर्ल्ड. That is the difference between Griffin and Richard. So this is the chapter, The Making of a Scientist, along with NCERT.